मूलाचरन् चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजैर्नव ज्ञानार्थं निराचार्यं प्रणमामि तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये मीनाक्षी राधिशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलादि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च द्विविशदा सर्वेर्विराजते योषो पञ्चदारते। प्रणाम दीजिए। हाँ राजेश संभळावीश जी 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 दीजिए। શાંતદાસ નો પેલો પ્રસંગ વૃદ્ધ થયા ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ ચાપાભાઈ અને શંકરભાઈ ને કહ્યું કે તમે એના ઘરે જઈ અને પંચામૃત આપી દો. પછી ત્યાં ગયા, પછી એમને પંચામૃત આપ્યો, પછી ઠાકોરજીના દ્રવ્ય આપી અને પછી ત્યારે શ્રી મુસાઈજી કીધું કે આને કહેવાય વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય. આને કહેવાય વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય. અને પછી ત્યાં બધે એમના પરિવારે અને એમના જે જ્ઞાતિ વાળાઓએ વિચાર્યું કે હવે અમે આને લેટાવી અને અમે મથુરા લઈ જઈએ. પછી ત્યારે એમણે કીધું કે ના, મને કઈ જરૂર નથી, મારા ઉપર શાસ્ત્રીજીનો આશ્રય છે. ત્યારે બધાને ચૂપ કરાવ્યો અને પછી બધે ભગવત સ્મરણ કરવાનું કહ્યું. બધે ભગવત સ્મરણ કરતા હતા અને પછી એમણે કીધું કે હું જયારે શ્રી ગુસાઈજીનો જન્મદિવસ હતો ત્યારે હું મથુરા ગોકુળ ગયો હતો અને ત્યારે ગુસાઈજીએ ચરણામૃત આપ્યો હતો. અને પછી આમ કરતા કરતા જ એમની દેહ છૂટી ગઈ અને પછી લીલામાં પ્રાપ્ત થયા. અને આવા જયારે ગુસાઈજીને ખબર પડી ત્યારે ગુસાઈજી બહુ પ્રસન્ન થયા. બીજામાંથી ઈ શીખ મળે છે કે આપણે કોઈ પણ તીર્થની આપણે યાત્રા કરીએ એના કરતા પણ આપણે તીર્થ કરતા સારો આપણે ઠાકોરજીના ચરણામૃત આશ્રય કરવો જોઈએ. બીજામાંથી શબ્દ કર્યો છે ગોકુલ ને વ્રજ પણ કહેવાય છે. અને ગો એટલે ગાય અને ગાયનો કુલ એટલે ગાયનો કુલ. અને એને નંદબાબાનો એડ્રેસ પણ કહેવાય છે. અને ઠાકોરજી ગાયની વચ્ચે બિરાજીને લીલા કરતા એટલે આ પ્રસંગ કોનો હતો એ મને સમજાણું જ નહીં. સંતદાસ. અચ્છા સંતદાસ. હા ઠીક છે. નરહરિદાસ સન્યાસી નો પહેલો પ્રસંગ. નરહરિદાસ સન્યાસી એ હતા ને 15 વર્ષના નાના હતા ને ત્યારે જેમને એક સંન્યાસ હતો તો એમના સાથે ચાલ્યા ગયા અને પોતે કેટલો તપ કર્યો. ઠંડીમાં ઠંડા પાણીમાં તપ કરતા, ઠંડા પાણી તપ કરતા, ગરમીમાં તડકામાં તપ કરતા. એમનું નામ વધ્યો. તો પછી એક સ્ત્રી હતી ને એમને રોજ પૂરી અને દેવા આવતી, પૂરી શીરો. તો એક દિવસ હાકીમ
નરહરિદાસને મળવા આવ્યો. એના પછી સ્ત્રી ને જોયો ને હાકીમને તો એ બી ગઈ અને નરહરિદાસના ઘરે જ છુપાઈ ગઈ. તો એ તો ત્યાં ઘરે જ છુપાઈ ગઈ અને હાકીમ તો આખો રાત એમના ઘરે રોકાવાના હતા. તો સ્ત્રીના પતિ હતા ને એમને પૂછ્યું કે મારી સ્ત્રી કેમ તમને રોજ દેવા આવે છે શીરો અને પૂરી. તો પછી કીધું કે શીરો પૂરી દઈને હાલી ગઈ. નરહરિદાસે કીધું તો પછી સ્ત્રીને પતિએ કીધું કે ના તમારા ઘરમાંથી નીકળી તો પછી હાકીમે પોતાના સૈનિકને તલાશી લેવા માટે કીધું. તો એમના ઘરેથી નીકળી તો પછી એમને માર્યો અને એ ગામ મૂકીને કાઢી નાખ્યો એ ગામમાંથી. તો એ છે ને એ ગયા વ્રજ. તો એમના એક સેવક હતો બેની કોઠાણી એમના સાથે જ હાલ્યા ગયા. બેની કોઠાણી એમના સાથે હાલ્યા ગયા વ્રજ. ત્યાં એમને મહાપ્રભુજીને જોયો. તો મહાપ્રભુજીને તો પછી નરહરિદાસે કીધું કે આ સ્ત્રીનો થોડોક મારો દુષ્ણ થયો તો મારા આખો એક ધર્મ આખો તૂટી ગયો. તો હું આ મહાપુરુષ લાગે છે તો આનો સંગ કરવો છે. એમના પાસે ગયા ને એમને કીધું કે અમે તમારા સાથે રહીએ. મહાપ્રભુજી કીધું કે હા ભલે હું દ્વારકા જાઉં છું અમારા સાથે રહેશો. હા પાડી. એમના સાથે જ રહેતા એમને લઈ ગયા. ત્યાં જાતા હતા. પછી મહાપ્રભુજીને વચમાં નરહરિદાસે પ્રશ્ન કર્યો કે શાસ્ત્રી ધર્મ મોટો સંન્યાસ ધર્મ મોટો કે ભક્તિ ધર્મ મોટો. તો પછી મહાપ્રભુજીએ કીધું કે બેઉ ધર્મ અલગ અલગ છે. તો એમાં છે ને અલગ અલગ જ છે ધર્મ. તો સંન્યાસ ધર્મ એક વાર જે થોડો દુષણ લાગી ગયો તો એ આખો તોડવો જ પડશે. તૂટી ગયો આખો. ભક્તિ ધર્મ એક વાર તમને દુષણ લાગી ગયો અને પાછો તમે કર્યો સત્સંગ કર્યો તો પાછો તમે ભક્તિ માર્ગમાં આવી શકો છો. અને તારા સાથે બી એક વાર થયો છે સંન્યાસમાં એમ કીધું નરહરિદાસને. મહાપ્રભુજીએ કીધું નરહરિદાસે મને સેવક કરો આપ. મહાપ્રભુજી કીધું કે ના તું પોતે પોતાના સેવક કરે છે હું તને શું કામ સેવક કરું. વચ્ચે કીધું કે ના નરહરિદાસે કીધું કે ના મને સેવક કરો. મહાપ્રભુજીએ એમને કીધું કે તું વ્રત રાખ. એક દિવસ આખો વ્રત રાખ. એમને વ્રત રાખ્યો આખો એક દિવસ. પછી બીજા દિવસે એમને કીધું સ્નાન કરાવ્યો. એના પછી એમને નામ નિવેદન કરાવ્યો. પછી તો પછી નરહરિદાસે કીધું કે મારો આ સેવક છે એમને બી આપ શરણ દો. તો એમને કીધું કે જા સ્નાન કરી આવો અને એમને ડાયરેક્ટ કરાવી દીધો. તો મહાપ્રભુજીને પૂછ્યો નરહરિદાસે કે મને આપે એક દિવસ વ્રત રાખ્યા અને આને વ્રત ના રખાય ડાયરેક્ટ કરાવી દીધો. તો મહાપ્રભુજીએ કીધું કે ના તું છે ને તું સંન્યાસ લીધો તો તારામાં આટલા બધા ધર્મ ભટકતો તો તું તે કર્યા છે અને તું પોતે ગુરુ માનતો હતો. એટલા માટે તને એક વાત રાખાય ઠાકોરજીમાં તારો મન વળે એટલા માટે. અને આ તો રસ્તા છે જીવ છે એટલે એક જગ્યા જોઈ એટલે એને ડાયરેક્ટ કરાવી દીધો. આમાંથી શીખ મળે છે કે આપણે સારો સંગ કરવો જોઈએ, દુષ્સંગ ના કરવો જોઈએ. જે શબ્દ કર્યો છે આશ્રમ ગ્રસ્ત આશ્રમ અને બ્રહ્મ આશ્રમ 4 આશ્રમ હોય. બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમ, ગ્રહસ્થ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ આશ્રમ અને સંન્યાસ આશ્રમ. એ 4 આશ્રમ હોય. અને બીજો શબ્દ છે વ્રત.
એટલે નિયમ જે આપણે એકાદશીના જે નિયમ કરી આપણે ફરાળ ખાવાનો હોય, અનાજ ના ખાવાનો હોય, એને વ્રત કહેવાય. શાબાશ, કેટલું મોટું વ્રત છે ને. ચાલો સારું, હવે આગળ ષોડશ ગ્રંથમાં સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, હવે હિન્દીમાં अन्वय तुम करोगे? एक मिनट रुको. अन्वय तुमने तैयारी की है? अनसुया नहीं, अन्वय, सॉरी. ओ जी 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 नहीं मैंने नहीं की जी हम थोड़ा बाहर गए थे. अच्छा कोई बात. हाँ चलो करो तो भक्ति हिंदी में. जी 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 देखिए, हमने कल के श्लोक में देखा था. पहले श्लोक की पहली लाइन में मंगलाचरण था. वो इसमें यह था कि मैं हरि को नमन करके अच्छी तरह से विशेष रूप निश्चय करके पूरे शास्त्र का सार यहाँ पर कहता हूँ. ऐसा यहाँ पे आचार्य जी ने बताया था पहले श्लोक की पहली लाइन में. और कहा था स्वमार्गीय सिद्धांत का विनिश्चय का उपदेश यहाँ पे कहा है. तो स्वसिद्धांत तो किसका सिद्धांत? आचार्य जी का सिद्धांत या तो हमारा सिद्धांत? तो यह शास्त्र का सिद्धांत. तो सिद्धांत का मतलब फिर जो शास्त्र का जो अर्थ है वही श्री आचार्य जी का अर्थ है. जो शास्त्र का सिद्धांत है वही श्री आचार्य जी का सिद्धांत. जो शास्त्र में है वही श्री आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं. और उसके दूसरी लाइन है उसमें था कि कृष्ण सेवा हमेशा करनी. दो सिद्धांत मुक्तावली में सिद्धांत बताए हैं. तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत है, सबसे पहला और मुख्य सिद्धांत कि कृष्ण की सेवा हमेशा करनी. सेवा कैसे करनी? तो हमेशा, तो कभी भी सेवा नित्य करनी. हमें कभी ठाकुर जी की तो कुछ दिन की कुछ दिन नहीं की ऐसे सेवा नहीं करनी. और मानसी सेवा उससे उसके फल रूप मानसी सेवा मिलती है. और मानसी सेवा की सिद्धि कैसे होती है वो आगे के श्लोक में बताएंगे. जैसे आगे का श्लोक करूं. ये विषय तो अब आएगा ना, कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता. ये अब करना है ना, ये उसका कर दिया. अरे जवाब तो आज करना है. हाँ ठीक है तो करो. जी 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 कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता. कृष्ण सेवा हमेशा करवी मानसी सेवा ते उत्तम मानेली છે. कृष्ण सेवा हमेशा करनी चाहिए. वो कृष्ण सेवा नित्य कर्म से करनी चाहिए. हमें कब ऐसा नहीं करना कि आधा हमने थोड़े दिन हमने सेवा की ठाकुर जी की, थोड़े दिन नहीं की. जैसे माँ अपने बच्चे को उठाने से लेके सुलाने तक की उसका पूरा ध्यान रखती है, वैसे हमें ठाकुर जी की सेवा रोज करती है और उसका नित्य वही करती है. तो ऐसे हमें भी ठाकुर जी की सेवा से मंगला से लेके उनको पौधाने तक की ऐसे सेवा करनी चाहिए और नित्य करनी चाहिए. और उसका फल रूप मानसी सेवा है. उसका निरूपण आगे के श्लोक में किया जाए. दीजिए मुझे इतना. ये तो श्लोक के ऊपर छोटे छोटे कैप्शंस हैं, उसमें नंबरिंग दी गई है और श्लोक में भी करस्पॉन्डिंग नंबर्स दिए हैं. कृष्ण सेवा की नित्य कर्तव्यता का उपदेश, ये एक बात यहाँ कही गई है. श्लोक में वो बात कहाँ आई है? कृष्ण सेवा सदा कार्या. उसके बाद उसकी फलावस्था. श्लोक में वो बात मानसी सा परामता, इन शब्दों में वो कहा गया.
तो यहाँ दो बातें कही गई है। एक बात, कृष्ण सेवा नित्य कर्तव्य रूप है। दूसरा, कृष्ण सेवा की फलावस्था मानसी कही जाती है। आगे ये बात कही जाएगी कि ये मानसी, ये अवस्था है, यानी एक स्टेज, और उस स्टेज पर हमें पहुंचना हो उसके लिए तनुविद्या सेवा साधन रूपा कर्तव्य बनती है। हम किसी भी काम में शुरू में जुड़ते हैं, उसमें हमें नया विषय होता है, इसलिए हमारा मन उसमें जुड़ा हुआ हो ये जरूरी नहीं, यानी मेंटली भी उसमें हम इन्वॉल्व हो, इमोशनली भी उसमें हम इन्वॉल्व हो, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे सब लोगों की हम हिंदुस्तान में देखते हैं, फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं, कपड़े पहनने का तौर तरीका भी सब अलग होता है, सोना उठना बैठना, लोगों से हिलना मिलना, ये सब में हमें बहुत विविधता दिखलाई देती है। और जो लोग लंबे समय से अपने अपने सराउंडिंग में फिक्स रहते हैं, उनमें ये इन सब विषयों में एक तरह का फिक्सेशन हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश वाले, राजस्थान के लोग, उनको हम कहें कि आपने भोजन कर लिया, तो उनके यहाँ ये बोलते हैं रोटी खा ली। तो भोजन, उसका पर्याय रोटी खाना है, यानी वहां का जो मुख्य भोजन है वो रोटी है। अब दक्षिण में हम जाएंगे तो वहां रोटी को कोई जानता भी नहीं है, वहां चावल खाते हैं। तो वहां अगर हम किसी से पूछें कि अपनी जो उत्तर प्रदेश या राजस्थान वाली मेंटालिटी को लेकर रोटी खा ली, वो पूछेंगे रोटी क्या होता है। अब ऐसे आदमी को कभी हम, यानी दक्षिण भारत वाले को उत्तर भारत में किसी फैमिली में वो गेस्ट बनकर आ जाए, या कोई उत्तर भारत वाला है वो दक्षिण भारत का गेस्ट बनकर जाए, वो दोनों तो अपने ढंग से ही भोजन बनाकर उसको परोसेंगे। पहले तो हमें ये समझ में ही नहीं आता है, हम दक्षिण में जाएं किसी के यहाँ, तो यही समझ में नहीं आता है कि कौन सी वस्तु के साथ क्या खाना, और कौन सी वस्तु कब खानी। यानी खाने की जो वस्तु है, डिशेस है, उसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले क्या खाना, उसके बाद क्या खाना, उसमें क्या, और जो 5-15 वस्तुएं रखी है उनमें किसका कॉम्बिनेशन है वो भी हमें पता नहीं चलता। तो ये सब कुछ खाना है, इतना हम समझ में आता है कि हमने सामने जो परोस कर रखा है वो सब खाने की वस्तु है। तो जैसे गाय भैंस कैसे खा लेते हैं, गोग्रास देते हैं, उस तरह से हम उनको पेट में डाल देते हैं। खत्म करना है जो भी है हमारा, जितने से पेट भर जाए। तो वो जो खाने की क्रिया है, जो हम अपने माहौल में जब बहुत रुचि से खाते हैं, स्वाद ले लेकर उसकी चर्चा करते हुए, ऐसी रुचि, ऐसा स्वाद, ऐसी प्रसन्नता, ऐसे जो नई जगह हम खाना जाए वहां पर हमें समझ में नहीं आता। पर लंबे समय तक हम वो क्रिया करते रहें, तो जो वस्तु हमारी रुचि की नहीं हो, या जिस विषय में हमें बहुत ज्यादा ज्ञान न हो, नॉलेज नहीं हो,
वो भी धीरे धीरे हमें पसंद आनी शुरू हो जाती है, अच्छी लगने लगती है। तो ऑर्डर ऐसा है कि पहले हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं क्रिया में, उसके साथ जो हमारी फैमिली है, हमारा घर है, हमारे बिलोंगिंग, जो भी हमारी चीज उनको वो सब अगर जुड़ जाते हैं तो मन को भी वहां जुड़ना ही पड़ता है। जैसे लोग जो हॉस्टल में पढ़ते हैं बच्चे, वो अपने परिवार से बिछुड़कर जब हॉस्टल में जाते हैं तो उनके मन में बड़ा संशय रहता है, मन में अरुचि सी होती है, ऐसे में हम अनजान जगह कहाँ जाए, कौन मिलेगा, कैसा होगा। तो एक बार तो सामान उठा कर वहां डालते थे, हो गए। अब तो तय है 2 साल 3 साल जो भी हमें यही हमारा घर है, यहाँ जो रहते हैं वही हमारी फैमिली है, यहाँ जो मिल रहा है उसी से खाना। पहले हम अपने मन से नहीं गए हैं, में हमारा मन नहीं जुड़ा है, तो शरीर जुड़ा, हमारी चीजें वस्तु में, उसके बाद धीरे धीरे मन भी जुड़ जाता है। इसी तरह सेवा में या प्रभु में मन का जुड़ना, 2 बातें अलग अलग हैं इसमें। श्री कृष्ण में मन का जुड़ना और कृष्ण सेवा में मन का जुड़ना। सेवा एक क्रिया है, कृष्ण अच्छा लगता हो पर क्रियाओं में हमारी कुछ अलग पसंद, जैसे कुछ लोगों को कीर्तन अच्छे लगते हैं, गाने सुनने, और श्री कृष्ण के ही कीर्तन भले ही, पर अपने शरीर से कृष्ण की सेवा करना, उसमें उनकी इतनी अधिक प्रवृत्ति नहीं होती है, उतनी उसमें रुचि नहीं आती, तत्परता नहीं आती। सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो कृष्ण में चित्त का प्रवण होना ये एक बात है, और कृष्ण की सेवा में चित्त का प्रवण होना ये दूसरी बात है। कृष्ण में चित्त प्रवण बिना तन विद्या के भी हो सकता है श्रवण कीर्तन स्मरण से, पर कृष्ण सेवा में चित्त का प्रवण होना, उसके लिए श्रवण कीर्तन स्मरण भी जरूरी है और तन विद्या सेवा भी। इसलिए श्री महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा करते हैं, चेतन तत्प्रवणम सेवा, चित्त का श्री कृष्ण में प्रवण हो जाना, यानी जैसे मोती में धागा पिरोते हैं उस तरह से हमारा चित्त श्री कृष्ण रूपी जो मोती है उसमें पिरो जाए, वो सेवा है। और किसी को मानसी कहा जाता है, क्योंकि चित्त का किसी में लग जाना ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। चित्त को लगाने में ही सबसे बड़ी समस्या है किसी भी विषय में। एक बार चित्त जहाँ लग गया वहां तो हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, जो भी कुछ है, जिसको भी लगाना चाहो वो अपने आप लग जाएंगे। समस्या तो चित्त में ही है। अब चित्त नहीं लग रहा है तो उसका उपाय क्या, कि चित्त जहां जहां लगा हुआ है उनको कृष्ण में लगा दो। जैसे जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, वो अपने आप नहीं चल सकते, इंजन के साथ जोड़ने पर इंजन जहां ले जाए वहां जा सकते हैं। उसी तरह अगर हमारा चित्त श्री कृष्ण में अपने आप नहीं जा रहा है तो वो जिनमें जुड़ा हुआ है उनको श्री कृष्ण में अगर हम जोड़ दें
तो इंजन के साथ जुड़े हुए डिब्बे जैसे इंजन जहां ले जाए वहां चले जाते हैं, उसी तरह हमारा चित्त घर में है, हमारे बिजनेस में है, परिवार में है, संपत्ति में है, उसमें लगा हुआ है चित्त, इसलिए वो प्रभु में नहीं जा सकता। तो उनको प्रभु में जोड़, उनको जोड़ने के साथ ही चला जाएगा। कभी तुम लोगों ने, शहरी लोगों ने तो नहीं देखा होगा, पर और इन सब लोगों ने तो देखा होगा कि गाय और बछड़ा दोनों साथ होते हैं, और उन दोनों में इतना लगाव होता है कि अगर सामने आमने दिखते हैं तो एक दूसरे से अलग नहीं। अब हमें मानो कि बछड़े का काम पड़ा, कहीं उसको ले जाना, तो बछड़ा नहीं आएगा उसकी मां को छोड़कर, जोर लगाएगा खींच खींच कर। अगर हम उसकी मां को ले आएंगे तो उसके पीछे पीछे बछड़ा अपने आप आ जाएगा। इसी तरह गाय का काम है, पर बछड़े को छोड़कर वो नहीं जाना चाहे, तो बछड़े को अगर लेकर आएंगे तो उसके पीछे पीछे गाय भी आ जाए। इस तरह से जो जहां जुड़े हुए हैं उनको उनके साथ प्रभु में लगाया जाए तो दोनों ही लग जाए। ये इसमें लॉजिक है। तो महाप्रभु यहाँ हमें ये समझाते हैं कि नित्य कर्तव्य हमारा क्या है? कृष्ण सेवा। वो कृष्ण सेवा का फल स्वरूप क्या है? फलावस्था उसकी मानस। मानस यानी कोई भी क्रिया ऐसी तो नहीं होती है कि जिसमें हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगा, थोड़ी देर लगा फिर उतर गए, फिर लगा, कुछ देर ज्यादा लगा, कभी नहीं भी लगा, कभी थोड़े दिन समय के लिए लगा, ऐसा उतार चढ़ाव उसमें आता रहता है। पर सेवा का मानसिक स्वरूप कब सिद्ध होता है? कि जब एक क्षण के लिए भी मन हमारा प्रभु से अलग न हो। जैसे मोती में धागा हम पिरो दें, वो कैसे पिर जाता है, पिरो जाता है, उस तरह से मन का प्रभु में लग जाना। के लिए शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है अखंड तैल धारवत। नल में से हम पानी चालू करते हैं तो उसमें एयर बबल्स आते हैं और पानी बिखरा हुआ सा आता है। अगर उसकी हम स्पीड थोड़ी धीरे करें तो टपक टपक कर पानी आएगा। पर अगर हम किसी बासन में से तेल को डालें, तेल की जो धार होती है वो ऐसी लगती है जैसे कोई ऐसी डंडी सी लकड़ी जुड़ी हुई, बीच में कहीं भी हमें कोई उसमें खंड टुकड़े दिखलाई नहीं देंगे। उस तरह से जो हमारी मन की धारा है वो श्री कृष्ण के प्रति ऐसी जाए जैसे कि वो तेल की धार जा रही, कोई इस बीच में खंड ना हो, यानी ब्रेक ना हो, बबल्स ना आए बीच में। इसको मानसी कहा जाता है। इसको परा कहा, परा यानी टेस्ट, फल। मानसी है वो फल रूपा अवस्था। ये बात यहाँ पर समझाइए। बोलो भक्ति क्या समझ में आया? इससे मुझे इसमें से समझ में आया कि इसमें दो बातें आचार्य जी समझाते हैं कि एक पहली जो कृष्ण सेवा नित्य कर्तव्य है और दूसरी कृष्ण सेवा की फलावस्था मानसी सेवा है। और मानसी ये अवस्था है, यानी एक स्टेज है। तो श्री कृष्ण तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें ठाकुर जी की सेवा नित्य करनी चाहिए। और श्री कृष्ण में मन का जुड़ना और कृष्ण सेवा में मन का जुड़ना, और ये दोनों बात
रास्ते अलग अलग हैं। श्री कृष्ण में मन का जुड़ना यानी कि हम ठाकुर जी कीर्तन करें, श्रवण करें। जी अब आ रही है? हाँ, बीच बीच में कट जा रही है आवाज। श्री कृष्ण के में मन का जोड़ना यानी हम ठाकुर जी के श्रवण कीर्तन करते हैं तो उसे हमारा मन श्री कृष्ण में जुड़ा, ऐसा कहते हैं। पर श्री कृष्ण सेवा में मन जुड़ाना यानी कि वो क्रिया है, तो उसमें हमारी रुचि कभी होती है कभी नहीं होती। तो हम अगर वो कर्म नित्य करें तो फिर हमारा मन उसमें लग जाता है। जैसे और चित्त श्री कृष्ण में नहीं जुड़ता तो जहाँ हमारा चित्त जहाँ भी जुड़ा हो, जैसे कि हमारा मन जहाँ भी जुड़ा हो, जैसे पैसों में या धन में या कोई हमारे परिवार में, तो हमें उन सबको ठाकुर जी में जोड़ना चाहिए। चीजें मुझे इतना समझ में आया। और मानसी सेवा की अवस्था, मानसी सेवा का स्वरूप हमें कब पता चलेगा? तो जब हमारा मन जब एक क्षण भी प्रभु से दूर ना रह सके, हम उसे उनके श्रवण स्मरण बिना हम ना रह सके, उसे मानसी सेवा कहा जाता है। परा यानी श्रेष्ठ और माननी यानी फलावस्था, इसलिए मानसी सेवा यानी फलावस्था। देखो अभी जो मैंने समझाया उसमें चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, इसका भी मैंने विवरण कर दिया। तो मानसीसा परामता ये सेवा की फलावस्था बताई। तब सेवा किसे कहते हैं? तो चेतस तत्प्रवणम सेवा, चित्त का श्री कृष्ण में प्रवण हो जाना, इसी को सेवा कहा जाता है। तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा यानी चित्त तत्सिद्ध्यै यानी उसकी सिद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए तनुवित्तजा साधन रूपा सेवा है। उसकी प्राप्ति के लिए मतलब चित्त श्री कृष्ण में लग जाए, प्रवण हो जाए, उसके लिए तनुवित्तजा सेवा करना ये उसका साधन है। तनुवित्तजा का मतलब तन से और धन से, हमारा तन और हमारा धन, इसको हम श्री कृष्ण में लगाएंगे, उससे श्री कृष्ण में हमारा चित्त प्रवण होगा। इस तरह से यहाँ पर 4 बातें समझाई। एक तो कृष्ण सेवा नित्य कर्तव्य रूप है, मानसी उसकी फल अवस्था कही जाती है, चित्त का श्री कृष्ण में प्रवण हो जाना ये सेवा है, सेवा की डेफिनेशन है। और ऐसी प्रवणता के लिए तनुवित्तजा सेवा ये उसकी साधन है। तो सेवा की साधनावस्था तनुवित्तजा है और मानसी है वो फल है। ये 4 बातें यहां समझाइए, ठीक है? अर्पण समझाओगे, कुछ कहोगे? क्या समझ में आया? ओ आटलू धीरे धीरे बोलीश तो केम समझाશે? આપણે કૃષ્ણ સેવા સદા કરવી જોઈએ। અહીંયા આવી જાય, આમાં બોલ, આમાં લાઈટ થાય ને એવી રીતે બોલ। આપણે કૃષ્ણ સેવા સદા કરવી જોઈએ અને આપણે આનાથી જે ઉત્તમ જે ફળ જે છે એને માનસી સેવા કહી જાય। માનસી સેવા છે અને માનસી સેવાનું એવું ડેફિનેશન છે કે આપણું ચિત્ત ભગવાનમાં જોડી જાય અને ભગવાન આપણું ચિત્ત ભગવાનમાં જોડી જાય, એની સિદ્ધિ તનુવિત્તજા સેવાથી થઈ શકે છે। એટલે આપણે તન અને ધનથી આપણે શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરીએ। શાબાશ। जी आपने बोलो।
आपने अभी तो 4 बातें बताई, वो एक बार रिपीट करोगे? और पहले 2 वो मुझे लिखना था, वो मैं लिख नहीं पाई। हाँ तो लिख लो। कृष्ण सेवा नित्य कर्तव्य है। कृष्ण सेवा की फलावस्था मानसी कहलाती है। चित्त का श्री कृष्ण में प्रवण हो जाना, यह सेवा का लक्षण है। चित्त को श्री कृष्ण में प्रवण करने के लिए तनुवित्तजा सेवा साधन रूपा सेवा कहलाती है। ठीक है? जी। आज यहाँ थोड़ा कार्य है तो यहाँ पर आज विराम रखते हैं।